Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this lecture, I will demonstrate examples, activities, programming time, and exercise question of chapter number 3 to get students familiar with programming. First of all, I will discuss activity 3.1, which is on page number 58. In this activity, its statement is as follows: write a program that takes the age of a person as input and displays teenager if the age lies between 13 and 19. A very simple question. You simply write a condition, and then if the condition is true, then you will write teenager, and if the condition is false, you will write not a teenager. Its code is in front of you. In line number 1, you can see that include statement is written, which is used to include header files in our program. It is as follows. I have highlighted it. After that, main function is used. The execution of our program starts from the main function. After it, we declare a variable age whose data type is integer. Then we display a message on the screen using printf function. The text that we write inside double quotation marks will be displayed on the screen. After that, we write percentage n. This is an escape sequence, and this will cause the cursor to move to the beginning of the new line. Then using the scanf function, we take the value from the user, which will be stored inside the variable age. After that, we write the condition if age greater than equals 13 and age less than equals 19. If the condition is true, then teenager will be printed on the screen, and if the condition is false, then not teenager will be printed on the screen. As there are two possibilities with the condition, it will either be true or false. So depending upon the value of the condition, one of these two statements will be printed on the screen. If the condition is true, the first printf statement will be executed and the second will be left. And if the condition is false, the first printf statement will be skipped and second printf statement will be executed. Now I will demonstrate it by pressing the play button. Oh, there is an error. So let's see what is the cause of error. Let me see it and rectify it. Hash include stdio.h int main enter age printf enter age scanf age if age greater than equal 30 and age less than equal to 19 printf teenage else print. Okay, so here is the error. We have wrong spelled the printf here in line 10, so I will correct the spelling of printf function. So PRINTF. Now the error is removed, and now if I click on the play button, the output of the program is as follows. So if I enter the value between 13 and 19, the message that will be displayed on the screen will be teenager. I enter a value 16 and the message, as you can see, is teenager. Now I run the program again and give it a value of 19. Again the teenager is printed on the screen. I run it one more time. Now I give it a value 20. As
This is not inside our condition, so message no teenager is displayed on the screen. I run it one more time and give it a value 12. Now again the message no teenager is printed on the screen. So I am sure that the concept and the logic of this program is clear to you. Now move to the next activity, that is activity 3.2. I run it and its statement is as follows. Write a program that takes year as input and displays leap year if the input year is a leap year. Leap years are divisible leap years are divisible by 4. A very simple logic of the program. Include statement is used to include the header files in our program. Then inside the main program we write the logic of our program. First we declare a year which data type is int. Then we print a message on the screen, enter year. After that we take the value from the user and store it inside the variable year. After that we write the condition. If year mod 4 equals 0, printf leap year, else printf not leap year. This question is quite same as the question that we have seen earlier. Okay, now I execute this program, enter year. Now I enter 2020 and press the enter key. Okay, this is a leap year as 2020 is divisible by 4. Now I run it one more time and give it a value of 2022. Okay, this is not a leap year. Now run it one more time and give it a value 2024. Now press the enter key. It is a leap year. So this is a very simple question, and I am quite sure that you are able to understand the logic of this question. Okay, now let's move to the next program. The next program is activity 3.5, which is on page number 67. Activity 3.5, page number 67. Okay, this is a very simple activity and its code is in front of you. The same pattern is repeated here multiple times. Here in this question, the concept of the statement if else if is explained. The statement of activity is as follows. Write a program that takes two integers as input and asks the user to enter a choice from 1 to 4. The program should perform the operation according to the given table and display the result. If the user enter 1 as a choice, the two variables will be added. If the user enter 2 as his choice, the two variables, the first one will be subtracted from the second one. And if the user enter 3, two variables will be multiplied. And if the user enter 4, the variables, the doing operation will be performed. Okay, a very simple question. Hash include stdio.h. This statement is used to enter the header file in our program. After that, main function is used, and then we declare a variable int choice n1 comma n2. The user enters two values that will be stored inside these variables. Now a message is displayed on the screen. Printf enter two integers. Then the user enters two integers. That is accomplished using the scanf function. Then using printf function, following message is printed on the screen: addition, subtraction, multiplication, and division. Then using scanf function, user choice is taken if user enter 1 as his choice. Okay, so here as you can see, if choice double equal 1, printf addition of numbers is, you simply add two numbers. If user enters 2 as his choice, the subtraction of the numbers will be performed, n1 minus n2. The first number will be subtracted from the second number. Okay,
If the user entered 3 as his choice, then the multiplication operation will be performed, as you can see here. If the user enters 4 as his choice, the division operation is performed, as you can see here. Okay, remember that if user enter 2, then the statement under the else if statement, which we have write printf statement subtraction of number is percentage d n1 minus n2 will be executed, and the rest of the statements will be skipped. Only the choice which will be satisfied, the statement under that else if statement will be executed, and rest of the statements will be skipped. Okay, if the user not entered any value between 1 and 4, then after the else keyword we print a message invalid choice. Here is a demonstration of this program. Now I run this program. Here you can see a message displayed on the screen, enter two integers. Now I entered 2, and after pressing the space button I enter 4. Now I enter the press button. Here 1 addition, 2 subtraction, 3 multiplication, 4 division. This message is displayed on the screen. Now the user enter his choice. I press 3 as my choice. Now you can see multiplication numbers is 8. 2 multiplied by 4 will result in 8. Now I run the program again. Enter two integers. 4 is the first integer and 2 is the second integer. Now press the enter key. Now I want to add them. My choice is 1. Now see that addition of the number is 6. 4 plus 2 will equal to 6. Okay, run it one more time. Now I show you the operation of subtraction, and the two integers, the first one is 4 and the second one is 8. Okay, now subtraction. For subtraction I will enter 2. As you can see, subtraction of numbers is 4 minus 8. So the result will be minus 4. So it is in front of you. Okay, one thing that you must keep in your mind, that we have multiple conditions which we check using if, else if, else if, else if, and then else. The condition which satisfies or which is true, the statements under these if or else if statement will be executed, and rest of the conditions or statements will be skipped. जो स्टेटमेंट आपकी इफ़ कंडीशन के बाद या एल्स इफ़ कंडीशन के बाद जो है वो जो कंडीशन ट्रू होगी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, बाकी स्टेटमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आगे पास इस प्रोग्राम की लॉजिक थी। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। एक मरतबा फिर इस प्रोग्राम को देख लीजिए, ये आपके पास प्रोग्राम है। ठीक है, इसको देखिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको दोबारा जो है ना कॉपी के ऊपर एक दो मरतबा लिख कर इसको कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसको रन करके देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। Okay, now I save this program and run it. Now you see the message displayed on the screen, enter two integer. I enter 3 and 9. Now I press enter key. Now you can see that the message which I have added
is displayed on the screen. 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, and enter your choice. Now I entered 3 and 3 multiplied by 9 will result into 27. Okay, so you can make minor modifications in the program. Okay, the next one is actually 3.5 is performed. After that the next one is it's exercise question. Exercise question number 1 on page number 75. पेज नंबर 75 पे आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 की स्टेटमेंट है. राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 integers as input and tells whether first one is a factor of the second one. I have written 2 programs here, and first I will execute the program number 1, then I will execute program number 2. Okay, so here let me comment the second program. So how can I comment the program? I will use multi-line comment. Okay, so multi-line comment, for multi-line comment I will press the slash and then star and slash star comments. Let me see from chapter number 1 that for multi-line comment I have to use slash star. Okay, after that the whole program will become a comment. Now I remove this comment and I go to the start of the program and remove this comment. Okay, so here is the code of exercise question number 1. Chapter number 3, and its statement is as follows. I read it once more. Write a program that takes 2 integers as input and tells whether the first number is a factor of second number or not. First, let's look at its code. Its code is quite simple. Hash include stdio.h and then int main. You are familiar with 2 statements. Then we declare 2 variables, n1 and n2, and their data type is integer. Then using printf function we enter a message on the screen, enter 2 integers. Then using scanf function we take the values from the user that are stored inside the variables n1 and n2. Then we write this simple condition: if n2 mod n1 equals 0, n2 को डिवाइड करेंगे n1 से, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकंड. अगर ऐसा ना हुआ तो हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट नंबर इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड. और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है ये ख़त्म हो जाता है. इसको मैं रन करता हूँ. देखें, इसको मैंने रन किया, एक एरर आ गया. एरर क्या है, इसको रिमूव करते हैं. अभी एरर आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ. इसको मैं दोबारा रन करता हूँ. अभी भी एरर आ रहा है. देखते हैं कहाँ पे एरर आया. जी, ये कोड जो है मेरा, ये कमेंट नहीं बना. इस कोड को मैंने अभी कमेंट बनाना है. तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा ये स्लैश स्टार. ये प्रोग्राम अब मल्टी लाइन कमेंट बन गया. ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ. इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ. नहीं, अभी भी नहीं बना. अनटर्मिनेटेड कमेंट. अच्छा, यहाँ पे वो कमेंट को कह रहा है अनटर्मिनेटेड. इसको अब यहाँ पे आके अगर मैं टर्मिनेट करूँ, स्टार स्लैश
अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ जी, अब ठीक हो गया। अब आगे पास है एंटर टू इंटीजर्स। फर्स्ट इंटीजर मैं एंटर करता हूँ 4, सेकंड इंटीजर मैं एंटर करता हूँ 8। जी मैंने एंटर की, प्रेस की। फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ 4। अब देखें कि 8 के टेबल में 4 आता है। अब अगर मैं एंटर करता हूँ 6 और 8, मैंने एंटर किया 6 और दूसरा नंबर मैंने एंटर किया 8। अब देखें फर्स्ट नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड। 6 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है। 8 का फैक्टर में 2 आता है, मैं एंटर करता हूँ 2 स्पेस 8। अब 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास लॉजिक थी फर्स्ट प्रोग्राम की। अब ये फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ और दूसरे प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम को कमेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग कमेंट यूज़ करूँगा स्टार स्लैश, और यहाँ पे शुरू में यहाँ पे इंट पे मैं करता हूँ स्लैश स्टार। अब ये कमेंट बन गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास बाकी था, ये यहाँ पे कमेंट मैंने बनाया था जो दूसरे प्रोग्राम को, उसको मैं रिमूव कर दिया। देखें जी, अब ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें राइट प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट and takes a number as input and displays yes if the number is multiple of 3 and has 5 in its unit price। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि 15 is a multiple of 3 and on its unit 5 is on its unit place। Second example is 75 is a multiple of 3 and it has 5 in its unit place। Let me run this program. Enter integer. First I enter 15. Okay, now I press enter key. Yes, 15 is a multiple of 3 and it has 5 in its unit place। Run it one more time. Now I enter 75. Okay, 75 is a multiple of 3 and it has 5 in its unit place। Now I run it one more time. 18. Okay, 18 is a multiple of 3 but it has not 5 in its unit place, so no is displayed on the screen। So this very simple program is in front of you and I hope that you will understand it। आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। पेज नंबर 75 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने अभी देखा। आप देखें जी नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके पास एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 इसका कोड है आपके पास। देखें एग्जाम्पल 3.1 बुक में आपकी किस पेज पे है। एग्जाम्पल 3.1 है बुक में पेज नंबर 54 पे। सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम आपके सामने है, आपने एक वेरिएबल लिया और आपने देखा कि वो वेरिएबल जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वेरिएबल हो रहा है तो आप मैसेज प्रिंट करेंगे वेरिएबल ए कंटेंट इवन वैल्यू। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप मैसेज डिस्प्ले करें। तो फिर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, आप जस्ट लिखेंगे यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ। इसको रन करके आपको जो है मैं इसका बताता हूँ। वेरिएबल ए कंटेन इवन वैल्यू यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। इसमें उसने हमसे कोई इनपुट वैल्यू नहीं ली क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोग्राम में ही जो है ए को हार्ड कोड कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल ए को प्रोग्राम में ही वैल्यू दे दी। हर मरतबा हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सेम वैल्यू के साथ रन होगा, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और देखिए कि अगर मैं यहाँ पे a mod 2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 1 तो क्या होगा। देखें अब कंडीशन हो गई फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, ये एग्जीक्यूट होगी। दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो हर हाल में एग्जीक्यूट होनी
है। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें मैसेज लिखा हुआ आएगा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। देखें जी, नहीं यहाँ पे वेरिएबल है कंटेंट इवन वैल्यू यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। यहाँ पे 12, अच्छा इफ़ ए मोड 2 इक्वल 1, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 1 तो नहीं आना चाहिए। इसमें क्या एरर आ रहा है, रन अगेन वेरिएबल कंटेनिंग वन वैल्यू। अच्छा इसमें देखते हैं क्या एरर हुआ हमसे, क्या लॉजिकल मिस्टेक है। इंट ए इक्वल्स 12 इफ ए मोड 2 इक्वल 1, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 0 अगर मैं लिखता हूँ तो अब कंडीशन ट्रू है, अब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको मैंने सेव किया, रन किया। अब वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यू ठीक है, दोबारा गए तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर मेरा आए 1, अब उसको फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट, ओ यहाँ पे ये सेमीकोलन का साइन आ गया था, इस वजह से वो मुझे वो एरर मैसेज शो कर रहा था। अब वो बिल्कुल ठीक करेगा, अब वो फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा, अब वो सेकेंड स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा प्रिंटफ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। देखें अब वो ठीक कर रहा है। वो पहले एरर मैसेज आ रहा था सेमीकोलन की वजह से, स्टेटमेंट जो भी है वो स्टेटमेंट को, इफ स्टेटमेंट को क्या कर रहा था, वो इग्नोर कर रहा था, उसके बाद वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा था वो, यानी कि ये दोनों जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स हैं वो इफ स्टेटमेंट का हिस्सा ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। आपके लिए एक नई चीज़ आ गई है, ये भी पूछी जा सकती है कि अगर हम इफ़ के बाद सेमीकोलन लगा दें तो इसका ताल्लुक जो है वो इसके बाद वाले स्टेटमेंट से टूट जाता है और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रू और फॉल्स ऑफ द स्टेटमेंट वो दोनों एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है। ये एग्जांपल 1 थी। अब इसके बाद एग्जांपल 3.4, एग्जांपल 3.4 की स्टेटमेंट जो है इसको भी मैंने ठीक करना है, इसको मैं आपके सामने लाइव लिख देता हूँ। एग्जांपल 3.4 ये आपके पास है पेज नंबर 61 पे है, पेज नंबर 61 पे। अब यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ, इसको देख लीजिए। यहाँ पे मुझे शामिल करनी पड़ेगी हैश इंक्लूड stdio.h, इसको मैं लिख लेता हूँ, देख लीजिए। हैश इंक्लूड यहाँ पे आएगा आई हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h, इसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज होगी। इसके बाद वाइड मेन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन का फंक्शन है, मेन के फंक्शन को मैंने शुरू किया, यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस आ गई, यहाँ पे इसकी ओपनिंग ब्रेसेस आ गई और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ब्रेस आएगी इस प्रोग्राम के बाद, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ब्रेसेस आ गई। ठीक है जी, अब ये प्रोग्राम अगर आपके सामने लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 15 इफ ए मोड 2 इक्वल 0, ये वही प्रोग्राम है जो कि अभी आपने देखा। उसकी थोड़ी सी चेंजेस हैं, इसमें चेंजेस क्या है कि यहाँ पे इफ़ के बाद हमने ये देखें, ये
लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे हमने ये ब्रैकेट लगाई है और लाइन नंबर 5 के बाद हमने ब्रैकेट लगाई यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट जो है ये हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 8 तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इस ब्लॉक में वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट जो है ये वाला, इसमें आपके पास आ रही है प्रिंट एफ द वेरिएबल ए कंटेन्स एन ऑड वैल्यू। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसके बाद मैंने ये क्लोज ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं लिखी है, लिखनी होगी। ठीक है, ये प्रोग्राम आपके पास अब क्लियर है। इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं इसमें कोई एरर है कि नहीं है। इसमें एरर आ गया, देखते हैं जी क्या एरर आया इसमें। प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है, ये देखें जी यहाँ पे प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है, PRINT। अब ठीक है जनाब, अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। देखें जी द वेरिएबल ए कंटेन एन ओड वैल्यू, ये मैसेज आया। ये मैसेज क्यों आया, कैसे आया, आप देखें जी। ये प्रोग्राम आपके सामने है। ए की वैल्यू 15, देखें जी ए की वैल्यू 15 है। 15 इज एन ऑड नंबर। इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 1। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई। ये कंडीशन क्या थी, इफ़ ए मोड 2 डबल इक्वल 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना था सारे का सारा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। द वेरिएबल ए कंटेन ऑड वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे 15 के बदले मैं लिख देता हूँ 16। अब देखिए अब क्या होगा, गेस करें। अब 16 जो है वो एक इवन नंबर है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा। ये जो कंडीशन है जो कि लाइन नंबर 4 पे है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये एल्स वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। देखिए क्या मैसेज प्रिंट होगा, वेरिएबल ए कंटेन्स इवन वैल्यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। अब मैं इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, देखें जी वेरिएबल ए कंटेन्स इवन वैल्यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। यहाँ पे वैल्यू के बदले वैल्यू आ रहा है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है जी, ये लें जी, ये ठीक हो गया। अब ये प्रोग्राम की लॉजिक आपके सामने है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो मिला वो कॉन्सेप्ट मिला है ब्लॉक स्टेटमेंट का। यहाँ पे इन ब्रेसिस के अंदर, ये जो ब्रेसिस हैं इनके अंदर आप जितनी स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये दूसरा एल्स वाला जो है वो स्किप हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता है और इसके नीचे वाला कोड जो है वो स्किप हो जाता है। अब आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 3.4 हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास है प्रोग्रामिंग टाइम 3.5, पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पे आपके पास है प्रोग्रामिंग टाइम 3.5। वेरी सिंपल प्रोग्राम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इसकी स्टेटमेंट ऊपर मैंने कमेंट में लिख दिया है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोग्राम है। इसमें आपने 3 नंबर्स एंटर करने हैं और आपने उसमें से लार्जेस्ट नंबर जो है उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। आपने 9th क्लास में इसका एल्गोरिथम पढ़ा, तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे आपने इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ की। इंक्लूड स्टेटमेंट के बाद आपने यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ किया। फिर यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ पे आपने मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर 3 नंबर्स। यहाँ पे आपने वो नंबर्स यूज़र से ले लिए। यहाँ पे आपने पहली कंडीशन लिखी, इफ़ n1 ग्रेटर दैन n2 एंड n1 ग्रेटर दैन n3। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो अगली कंडीशन जो कि एल्स इफ में लिखी हुई है उसको चेक करेगा। इफ़ n2
एल्स इफ n2 ग्रेटर देन n3 एंड n2 ग्रेटर देन n1, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, ये कंपाउंड आपके पास कंडीशन है। यहाँ पे देखें एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, इससे पहले एक कंडीशन है, उसके बाद एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना वो अगली कंडीशन को चेक करेगा। एल्स के बाद देखें, एल्स के बाद हमारे पास है अगर n1 बड़ा नहीं है, n2 बड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है n3 नंबर जो है बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट अप कर देंगे प्रिंट अप द लार्जेस्ट नंबर इज़ n3। इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें पहला नंबर मैंने एंटर किया 4, दूसरा नंबर मैंने एंटर किया 6, तीसरा नंबर मैंने एंटर किया 8। अब देखें द लार्जेस्ट नंबर इज़ 8। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, पहला नंबर एंटर करता हूँ 6, दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 4, तीसरा नंबर एंटर करता हूँ 8। अब देखें अब क्या डिस्प्ले करेगा, अभी वो 8 डिस्प्ले कर देगा। दोबारा रन करता हूँ, फिर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ 8 6 4, 8 6 4। देखें अभी उसने सेम मैसेज डिस्प्ले किया। तो कोई भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दें, कोई भी वैल्यूज़ दे दें, 77 55 22, वो हमेशा आपको लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करेगा। तो प्रोग्राम आपके सामने है, वेरी सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको देखने के बाद इसको एक दो मरतबा लिखिए, इससे फेमिलियर हों। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम है। ये हमारे पास एक्टिविटी 3.5 प्रोग्रामिंग टाइम 3.5 हो गया। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग टाइम 3.3, प्रोग्रामिंग टाइम 3.3 है। ये प्रोग्राम्स इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम देखेंगे आप उतने ज़्यादा इससे फेमिलियर होंगे। ये मेरे पास प्रोग्राम था 3.3, पेज नंबर 63 पे है, प्रोग्रामिंग टाइम 3.3 जी। इसमें आपके पास सिंपल सा कोड है, बुक में लिखा हुआ है। ये भी 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज इनपुट एंड डिस्प्लेस हिज ग्रेड। Following table shows grade distribution criteria. If percentage is greater than 80, then grade will be A. If percentage is between 70 and 80, then grade is B and so on. प्रोग्राम आपके सामने है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन फंक्शन में आपने %PER वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें आप परसेंटेज एंटर करेंगे। ये फ्लोट टाइप का है। यहाँ पर आपने मैसेज डिस्प्ले किया प्रिंट प्लीज़ एंटर परसेंटेज। यहाँ पे स्कैन एफ आपने यूज़र से वैल्यू ले ली। इफ परसेंटेज ग्रेटर 80, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप देखेंगे टेबल में जो कि क्वेश्चन में दिया है। अगर परसेंटेज 80 है तो प्रिंट एफ ए प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, अगली कंडीशन को चेक करेगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो वो क्या करेगा, वो करेगा बी को प्रिंट कर देगा और बाकी तमाम कोड को स्किप कर देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इसको मैं रन करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर आ गया, क्या एरर आया देखते हैं। इसको रिमूव करते हैं, एरर कहाँ पे है, ये देखें जी। प्रिंट के स्पेलिंग ठीक है, इफ एल्स एल्स। इसमें एरर कहाँ पे है, ये एरर है, यहाँ पे कॉलन साइन आ गया, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के इसको दोबारा रन करता हूँ। देखें जी प्रोग्राम रन हो गया। और यहाँ पे एंटर परसेंटेज में एंटर करता हूँ 88, एंटर की प्रेस की, देखें ए ग्रेड प्रिंट हो गया। दोबारा मैंने एंटर किया, मैंने परसेंटेज एंटर की 77। अब 77 के बाद मैंने एंटर किया बी, ग्रेड प्रिंट हो गया। फिर मैंने रन किया, मैंने 67 दी। अब यहाँ पे देखें सी। तो ये प्रोग्राम सिंपल आपके पास है। यहाँ मैं इसको लास्ट टाइम रन करता हूँ और मैं इसको वैल्यू देता हूँ बिलो 49 मैंने वैल्यू दी, देखें एफ ग्रेड आ गया। तो ये प्रोग्राम आपके सामने है, वेरी सिंपल प्रोग्राम है,
मैंने इसलिए लिखा ताकि आप यहाँ पे जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स को देखेंगे उतने ज़्यादा आप इससे फेमिलियर होंगे। एल्स इफ़ को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो। उन मल्टीपल कंडीशन में जो कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, बाकी तमाम कंडीशन जो हैं वो स्किप हो जाएंगी, बाकी तमाम कंडीशंस को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद देखें हमारे पास कौन सा कोड है। तो इस एक ही लेक्चर में आपके पास अगर आप देख लेते हैं इसकी तमाम एग्जांपल्स को तो चैप्टर नंबर 3 आपके पास कंप्लीट हो जाता है। ये 3.3 थी। अब लास्ट इसकी जो एग्जांपल है वो प्रोग्रामिंग टाइम 3.4 पेज 65, पेज नंबर 65 3.4। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को जनरेट किया गया है। इसमें इफ एल्स इफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ़ के बाद फिर इफ़ की स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं तो ये नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ की, उसके फौरी बाद हमने फिर इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ की, तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर आगे पास है। यहाँ पे ये जो पैटर्न है, इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 200, इफ़ यूज़र टाइप इक्वल टू h, यूनिट प्राइस इक्वल टू 12, एल्स इफ यूज़र टाइप इक्वल टू 15, ये कोड जो है जो मैंने हाईलाइट किया ये 3 मरतबा यहाँ पे रिपीट हुआ। ये कोड देखें यहाँ पे रिपीट हो रहा है सेम टू सेम, यहाँ पे ये कोड रिपीट हुआ, फिर ये कोड तीसरी मरतबा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो बहुत ईजी है लिखने के लिए। आपकी बुक के पेज नंबर 65 पे तकरीबन बुक के आधे पेज के ऊपर उसने ये इसकी स्टेटमेंट लिखी है। 2 टेबल्स उसने दी हैं। उसने कहा है जनाब एन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कंपनी कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, बिल अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ये हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया। ये यहाँ पे देखें, बिल इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। आपके पास 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है आपके पास होम कनेक्शन, एक होता है आपके पास कमर्शियल कनेक्शन। तो उसके लिए आपकी बुक में 2 टेबल्स गिवन है। उस टेबल के अकॉर्डिंगली यानी कि पहले आप एंटर करेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो किस टाइप का है, कमर्शियल टाइप का है या होम यूज़र है। तो उसके बाद आप एंटर करेंगे कि आपके कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए। तो यहाँ पे 3 चॉइसेस दी गई हैं, लेस देन इक्वल टू 200, बिटवीन 200 एंड 400 एंड ग्रेटर देन 400। इसको हम देखते हैं, क्विकली इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ, मेन में आपने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला आपने डिक्लेयर किया एंड यूनिट्स, फिर यूनिट प्राइस, फिर बिल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया करेक्टर डाटा टाइप का, उसमें आपने यूज़र टाइप लिखा। उसके बाद प्रिंट आपने मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर एच फॉर होम यूज़र एंड सी फॉर कमर्शियल यूज़र। इसके बाद आपने क्या किया, स्कैन एफ की स्टेटमेंट से यूज़र से उसकी टाइप पूछ ली कि वो कमर्शियल यूज़र है या होम यूज़र है। इसके बाद आपने कहा जनाब प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब यहाँ पे आपने स्कैन एफ की मदद से यूनिट्स ले लिए। अब ये देखें, अब ये जो है ये अगेन एंड अगेन ये पैटर्न जो है ये वाला पैटर्न रिपीट होगा। इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 200 और अगर उसकी यूज़र टाइप है एच तो यूनिट प्राइस 12, अगर यूज़र टाइप एच नहीं है, यूज़र टाइप है सी तो यूनिट प्राइस 50। इसी पैटर्न को नीचे यहाँ पे रिपीट किया। देखें, एल्स इफ यूनिट्स अगर 200 नहीं है, इफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200 और लेस देन इक्वल टू 400 और यूज़र की टाइप जो है वो होम यूज़र है तो उसका यूनिट प्राइस होगा 15। अगर यूज़र टाइप जो है वो कमर्शियल है तो उसकी यूनिट प्राइस होगी 20। इसी पैटर्न को नीचे रिपीट किया गया है। देखिए, इफ़ यूज़र टाइप इक्वल टू एच तो यूनिट प्राइस होगी 20, वरना
यूज़र टाइप अगर कमर्शियल है तो यूनिट पैदा हो जाएगी 24, और यहाँ पे हमने बिल को कैलकुलेट किया और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको रिपीट कर दिया। तो वेरी सिंपल कोड है। देखने में आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने 3 दफ़ा इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ रिपीट किया। ये आगे बस नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। यहाँ पे लाइन नंबर 10 में इफ़ आ रहा है, लाइन नंबर 11 में फिर इफ़ आ रहा है, क्योंकि हम 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं। नंबर 1, यूनिट्स जो हैं वो एक ख़ास रेंज में चेक कर रहे हैं, फिर यूज़र की टाइप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। देखें, एंटर एच फॉर होम यूज़र, सी फॉर कमर्शियल यूज़र। यहाँ पे मैंने एंटर किया एच, ये पहली मैंने चॉइस दे दी। अब दूसरे को कह रहे हैं एंटर नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया 150, ये 15 एंटर किया मैंने। ठीक है, 15 यूनिट्स हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे पास देखें, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आ गया 180। ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। एंटर एच फॉर होम यूज़र, मैं सी कमर्शियल यूज़र, मैंने जो है वो सी फॉर कमर्शियल यूज़र एंटर किया। इसके बाद मेरे पास यूनिट्स आए 20, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स 20। अब देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर आपके पास आ जाएगा 300। तो ये बिल्कुल ठीक प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 3 के तमाम अहम प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग टाइम्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको उम्मीद है 100% ये समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और जितनी मुमकिन हो सके उनकी मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।